Hello students, good morning. How are you? In previous video, our topic is structure of brain. In previous video, I draw a level diagram of human brain and I tell you different parts of human brain and the present position of your brain. I written its first part for brain, and I tell you in previous video that human brain has three parts. Then we are studying central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट मैंने आपको नर्वस सिस्टम वाले रे डायग्राम में नोट करवाए थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वहाँ पर हमने डिफाइन भी किया था। व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर नर्व्स टुगेदर फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन in central nervous system we also study the human brain structure, and this structure I tell you human brain has three part. First part forebrain, second midbrain, and third is hindbrain. I described in previous video first part forebrain, and I tell you that forebrain consists of three parts and they are named as cerebrum, thalamus, hypothalamus. Cerebrum part is the bigger part of your brain. It constitutes 80 to 85% part of total human brains. You are most intelligent organism of this nature because your cerebrum is bigger than any other organism. Cerebrum works thinking, consciousness, memory, etc. ये फंक्शन करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम को टू पार्ट्स में, टू हेमिस्फीयर में इसको राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड किया था। और राइट और लेफ्ट जो हेमिस्फीयर थे उसका आउटर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड ए फ्लूइड ग्रे मैटर filled in it, and the inner part is known as medulla and white matter filled here. A strip divided both hemisphere is called corpus callosum strip. Okay, thalamus surrounded the hemisphere, and thalamus is the center of sensory and motor neurons. Hypothalamus present in the diencephalon part of human brain, and hypothalamus is the center of hunger, thirst, sleep, temperature, etc. ये सारी चीजें, these all information give you in previous video about forebrain, and now we are going to start next structure of human brain या next point of human brain is called midbrain. midbrain को आप अपने जो डायग्राम था उसमें आप टैली करेंगे। midbrain जो था वो कहाँ पर था? जो मैंने नीचे वाली ये वाली जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी इस स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर था, यानी कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अराउंडेड था, पास में था, नियरेस्ट था। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन
मिड ब्रेन जो होता है उसके अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 4 lobes are present in midbrain. These lobes are solid and upper 2 lobes are responsible for sight and lower 2 lobes are also responsible for hearing. These 4 lobes are also known as corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina. So this is the structure of midbrain. Now start to written the structure of midbrain. तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे midbrain. और midbrain को नोट करना स्टार्ट करेंगे. Midbrain is divided into 4 lobes. Midbrain is divided into 4 lobes. मिड ब्रेन को कितने लोब्स में डिवाइड किया गया है? 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है. मिड ब्रेन कहां पर प्रेजेंट है? मिड ब्रेन कहां पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट between hypothalamus and hindbrain. कहां पर प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के बिटवीन प्रेजेंट होता है कौन? मिड ब्रेन. अब मिड ब्रेन का जो लोब होता है, मिड ब्रेन के अंदर जो 4 लोब्स है, उन लोब्स को मैंने क्या बोला था? ईच लोब्स ऑफ मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इज कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना. जो मिड ब्रेन का ईच लोब्स है, प्रत्येक जो लोब होता है उसको क्या बोला था हमने? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना. कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ठीक है ना? ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो स्ट्रक्चर है कहां पर प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में. अब 4 लोब्स है. 4 लोब्स में से अपर 2 लोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर साइट एंड लोअर 2 लोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग. यानी कि ऊपर के 2 जो बिंदु होते हैं, ऊपर के जो 2 लोब्स हैं, वो तो किसके लिए उत्तरदायी है? देखने के लिए, साइटनेस. आपकी आंखों का जो सेंटर है, योर आई सेंटर is present in which place of your brain? Our eye center is also present in midbrain and ear center. आई और ईयर दोनों के जो सेंटर होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. तो यहां पर आगे लिखेंगे द अपर ट्यूब. द अपर ट्यूब lobes are responsible for sight and lower 2 lobes are responsible for hearing. ऊपर के 2 केंद्र तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? देखने के लिए. और निचले वाले जो 2 केंद्र होते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? सुनने के लिए. ये आपका मिड ब्रेन होता है. अब मिड ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन पॉइंट क्या है? इसका मेन पॉइंट होता है कि
आँखों का, आई का और कानों का, योर ईयर्स का जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पर है? मिड ब्रेन में। आई और ईयर का सेंटर कहाँ पर है? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में कितने लोब्स हैं? 4 लोब्स हैं। ईच लोब्स आर इज नॉन एज कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। प्रत्येक लोब्स को क्या बोलोगे आप? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन कहां पर प्रेजेंट है? मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड हिंड ब्रेन। कहां पर प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस पार्ट फॉर ब्रेन का है, लास्ट पार्ट, और मिड ब्रेन बीच में होगा, हिंड ब्रेन लास्ट में होगा। तो हिंड ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है, फॉर ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है, उन दोनों के जो बिटवीन प्रेजेंट है वो क्या है? मिड ब्रेन। ओके, अब इसका लास्ट पॉइंट जो होता है वो है, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया, और इसको बोलेंगे आप हिंड ब्रेन। आपके ब्रेन का थर्ड पार्ट का नेम क्या होता है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो होता है ये, इसके अंदर 3 पार्ट, दिस पार्ट कंप्राइजेस ऑफ द सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। हिंड ब्रेन जो होता है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट होते हैं? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम का जो फंक्शन होता है वो अलग होता है, पोन्स का अलग होता है और मेडुला का अलग होता है। सेरिबेलम जो होता है वो क्या काम करता है? आपकी जो इनवॉलेंटरी जो एक्शंस होती है, इनवॉलेंटरी जो एक्शंस होती है उनमें ये हेल्प करता है, और न्यूरॉन्स को काम करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा। न्यूरॉन्स को काम करने के लिए एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड करता है कौन? सेरिबेलम। और सेरिबेलम जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरिबेलम। सेरिब्रम तो फॉर ब्रेन में होता है, सेरिबेलम हिंड ब्रेन में होता है। ठीक है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? इनवॉलेंटरी जो मसल्स होती है, वॉलेंटरी जो मसल्स होती है उनको कंट्रोल करता है और न्यूरॉन्स को एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। ठीक है ना? तो हिंड ब्रेन में लिखेंगे हम, दिस पार्ट कंप्राइजेज कौन कौन से पार्ट इसके अंदर कंप्राइजेज होते हैं? ऑफ द सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। ये 3 पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं किसके अंदर? हिंड ब्रेन के अंदर। मेडुला लिख रहा हूं मैं इसको, मेडुला ऑब्लांगेटा भी बोलते हैं इसको, मेडुला ऑब्लांगेटा। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, ऑब्लांगेटा। ये 3 पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के अंदर। अब सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है। और ये क्या करता है? इट regulates the voluntary muscles। ये क्या करता है? वॉलंटरी मसल्स को रेगुलेट करता है। और वॉलंटरी मसल्स कौन सी हैं?
दो प्रकार की, टू टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स आर फाइंड इन योर हैंड एंड लेग्स, then involuntary muscles are present in the inner part of your body. Voluntary muscles are controlled by your wish, while involuntary muscles are not controlled by your wish. आप वॉलंटरी मसल्स को अपने इच्छानुसार कंट्रोल कर सकते हो, बट इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके हाथों के अंदर और पैरों के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं। मैं चाहूँगा तो मेरा हाथ हिला सकता हूँ, नहीं चाहूँगा तो नहीं हिलाऊंगा। मैं चाहूँगा तो पैर हिला सकता हूँ, नहीं तो नहीं हिला सकता। बट इनर पार्ट ऑफ द बॉडी इनवॉलंटरी मसल्स आर प्रेजेंट। इफ आई वांट टू स्टॉप देम देन आई कांट स्टॉप देम। ओके, तो वॉलंटरी मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है आपके, मैं ब्रैकेट में नोट कर देता हूँ जिससे आपके ध्यान रहे। हैंड्स एंड फीट, आपके हाथ और पैरों की जो मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं उनको, जिन पर आपकी विश का कंट्रोल है और उनको रेगुलेट करने का काम किसका है, हिंड ब्रेन के पार्ट सेरिबेलम का। हिंड ब्रेन के पार्ट सेरिबेलम का इसका काम होता है। इट इज ए नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है क्या है, इट इज एल्सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा सरफेस फॉर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स को एक्स्ट्रा सरफेस भी प्रोवाइड कराता है। न्यूरॉन्स को एक्स्ट्रा सरफेस भी प्रोवाइड कराता है। कौन, सेरिबेलम। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स वो स्ट्रक्चरल्स एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपकी बॉडी से जो सेंस होते हैं उन सेंस को एक्सेप्ट करके सीएनएस तक पहुंचाने का और वहाँ से जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को एक्टिव मसल्स तक लाने का या ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, न्यूरॉन्स का होता है। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको अपना काम करने के लिए एक सरफेस की आवश्यकता होती है। तो सेरिबेलम जो होता है इन न्यूरॉन्स को काम करने के लिए एक्स्ट्रा सरफेस अवेलेबल कराता है। तो एक्स्ट्रा सरफेस अवेलेबल कराने के कारण ये जो न्यूरॉन्स हैं इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा सफिशिएंटली तरीके से, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से संपन्न हो जाती है। इसीलिए तो आपके हाथ पैरों का इतना अच्छा, हाथ पैरों की जो मसल्स हैं उन पर इतना अच्छा कंट्रोल होता है। इतना अच्छा कंट्रोल इसलिए होता है कि उनके पास एक्स्ट्रा सरफेस होती है पूरा फंक्शन प्ले करने के लिए। ठीक है ना। अब इसके अदर पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट कौन सा था, पॉन्स। पॉन्स क्या करता है बताओ, पॉन्स क्या करता है, पॉन्स कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पॉन्स जो होता है, पॉन्स कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम किसका हो गया, पॉन्स का हो गया। और अब कौन बचा बेटा, मेडुला। अब कौन बचा, थर्ड पार्ट, मेडुला ऑब्लांगेटा। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो क्या करता है, वो इनवॉलंटरी जो एक्टिविटीज होती है उन पर अपना कंट्रोल करता है।
मेडुला ऑब्लांगेटा। तो लिखेंगे हम नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन, कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन सी, लाइक हार्ट बीट, आपकी जो हार्ट बीट होती है, आपका जो रेस्पिरेशन होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, आपका जो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करने का सिस्टम होता है, ये सब क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ब्लड प्रेशर and secretion of digestive juices etc. और भी कई काम होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, वो भी इनवॉलंटरी होती है, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन सिस्टम रेगुलरली वर्क करता रहता है, उस पर आपकी विश का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जितनी भी एक्शंस इनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी की दोज एक्शंस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विश आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। और ये इनवॉलंटरी एक्शंस जिन पर हमारी इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उन पर कंट्रोल करने का काम ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट करता है। ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये आपके ब्रेन का लास्ट पार्ट है, और ये जो लास्ट पार्ट होता है, ये किसके साथ जाकर कनेक्ट हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। किसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, क्योंकि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों होते हैं। तो ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं, मेडुला इज द लास्ट पार्ट of human brain, which connects with spinal cord। किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी ब्रेन की स्ट्रक्चर के थ्री पार्ट्स लिखवाए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और तीनों पार्टों को आप आराम से समझ सकते हैं और आराम से इसको नोट करके लर्न हो जाएंगे। इसमें मिड ब्रेन में तो फोर लोब्स आपको लर्न करने, और फोर लोब्स के नेम क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और फोर लोब्स जो होते हैं उसमें से टू अपर, ऊपर वाले दो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, साइड टेस्ट के लिए, और नीचे वाले दो किसके लिए, हियरिंग के लिए। और ये मिड ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के बिटवीन होता है। ठीक उसी प्रकार से आप हिंड ब्रेन को देखिए, हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, हिंड ब्रेन में मेनली कितने पार्ट कंसिस्ट होते हैं, 3 पार्ट्स आर कंसिस्ट इन हिंड ब्रेन। कौन कौन से, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके साथ, हिंड ब्रेन में। इसमें से सेरिबेलम जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ह्यूमन ब्रेन का कौन है, सेरिब्रम। कौन है, सेरिब्रम। फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, वो 80 to 85% पार्ट को कवर करता है आपके ब्रेन को।
और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हो गया? सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ये ध्यान रखने हैं हमको, दोनों पार्ट जो मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर लार्जेस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और सेरिबेलम का काम क्या होता है? ये आपकी जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है और न्यूरॉन्स को एक्टिव रखने के लिए उनके लिए एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड कराता है। और पॉन्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो ब्रेन के जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको आपस में अटैच करने का काम करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा का फंक्शन क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उन पर अपना कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हार्ट बीट है आपकी, ब्लड प्रेशर है, डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन है, इन सब पर कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो आपके ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, तो किसके साथ अटैच हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हो जाता है। तो आप इनको नोट कीजिए और नोट करने के बाद अब हम आगे देखते हैं सीएनएस का। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सीएनएस का फर्स्ट पार्ट तो हो गया ब्रेन। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल चुका है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद इट्स वेरियस पार्ट्स एंड ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम। तो आपने लेवल्ड डायग्राम भी बना लिया, ब्रेन की स्ट्रक्चर के वेरियस पार्ट में आपने 3 पार्ट्स को डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड विच ऑर्गन्स आर पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होगा और साथ में दूसरे नंबर पर जो एक्सप्लेन करना है उसको कौन है? वो स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए ब्रेन के बाद अब हम स्पाइनल कॉर्ड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ब्रेन के बाद अब हम स्पाइनल कॉर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इनको इरेज करता हूं और स्पाइनल कॉर्ड को स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड ऑर्गन कौन सा होता है ब्रेन के बाद? स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो आपकी नेक में प्रेजेंट है। क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो आपकी नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। यहां पर आपकी नेक में ये मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया और यहां से पीछे से ये छोटी सी एक नली होती है, ठीक है ना। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो आपके हिंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा से अटैच होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और इस स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसके अंदर एक न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होती है और न्यूरल कैनाल जो होती है उसके अंदर से जो मसल्स होती हैं, सॉरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको आने और जाने का एक पाथ वहाँ से होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इसकी सेफ्टी के लिए इसमें कुछ और चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, तो हम नोट करना स्टार्ट करते हैं। इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर with which attached लिख दो चाहे कनेक्ट लिख दो, अटैच्ड विद मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट से ये अटैच होती है। कौन अटैच होता है? स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है हिंड ब्रेन के साथ। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो एक न्यूरल कैनाल की तरह होती है। तो यहां पर नोट करेंगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूरल कैनाल। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूरल कैनाल होती है जो वर्टिब्रेट जो भी होते हैं ना जंतु ऑर्गेनिज्म, उनमें कहां पर कॉलम कहां पर ये सेफ रहती है, विच रिमेन्स हाउस्ड इन बिटवीन द it remains housed in between the vertebra columns। फॉर सेफ्टी, सुरक्षा की दृष्टि से कहां पर उपस्थित होती है, जो वर्टिब्रा कॉलम होते हैं उनके बीच में, वर्टिब्रा जो कॉलम होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होती है। और क्या होती है, एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज ए narrow tube which surrounded ये एक छोटी ट्यूब है जो सराउंडेड होती है, which surrounded by two thick walls, by two thick layer balls, two thick layer balls। A narrow central tube is found in the central part of the spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक छोटी सी नाल होती है, एक छोटी सी नली आकार की स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो जो स्ट्रक्चर होती है वो दो थिक बॉल्स, लेयर्स होती है, उनकी लेयर्स की बॉल्स जो होती है वो थिक होती है और उनसे वो सराउंडेड होती है। कौन, ये सेंट्रल पार्ट, नैरो ट्यूब जो सेंट्रल पार्ट है। तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे, विच रिमेन्स सराउंडेड बाय ए ट्यूब लेयर विच remains surrounded by two layer, surrounded by two layer thick ball, two layer thick ball। अब टू लेयर जो थिक बॉल है उनमें से आउटर लेयर को क्या बोलेंगे और इनर लेयर को क्या बोलेंगे, ये लिख देता। इनर लेयर इज कॉल्ड ग्रेमेटर, द इनर लेयर इज कॉल्ड ग्रेमेटर। इनर लेयर को तो क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर, और जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर। एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड
व्हाइट मैटर। देखो, ए नैरो सेंट्रल ट्यूब, एक सकड़ी केंद्रीय नली। नैरो माने सकड़ा, सेंट्रल माने केंद्र और ट्यूब माने नली। एक सक्रिय केंद्रीय नली इज फाउंड, पाई जाती है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक सकड़ी केंद्रीय नली पाई जाती है, विच रिमेन्स सराउंडेड बाई, जो चारों ओर से घिरी रहती है, 2 लेयर थिक वॉल्स, 2 मोटी भित्ति वाली झिल्लियों के द्वारा, 2 मोटी भित्ति वाली झिल्लियों के द्वारा। और इसमें से द इनर लेयर, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको तो क्या बोलोगे, ग्रे मैटर, और जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलोगे आप, व्हाइट मैटर। ठीक है ना। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका मेनली फंक्शन क्या होता है? द स्पाइनल कॉर्ड मेनली वर्क्स टू, द स्पाइनल कॉर्ड mainly works to control, mainly works to control, या कंडक्ट एंड कंट्रोल की जगह कंडक्ट वर्ड लिखते हैं, कंडक्ट एंड रेगुलेट, कंडक्ट एंड regulate the involuntary action, the involuntary action। ठीक है। और ये तो इसका मेन फंक्शन हो गया स्पाइनल कॉर्ड का, कि इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करना और उनको कंडक्ट करना। और इसका एक एडिशनल वर्क और होता है। एडिशनल वर्क क्या होता है कि आपकी बॉडी से जो भी न्यूरॉन्स सेंस को लेकर ब्रेन को जाएंगे और ब्रेन से ऑर्डर लेके आएंगे, वो दोनों के दोनों कहाँ से गुजरेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये स्पाइनल कॉर्ड उन सेंस न्यूरॉन्स को पाथ प्रोवाइड करता है। इसका एडिशनल वर्क है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है ना। तो एडिशनली इट प्रोवाइड्स ए पैसेज, एडिशनली इट प्रोवाइड ए पैसेज for the impulse coming from, कहां से कमिंग होंगे बताओ इम्पल्स, कमिंग फ्रॉम एंड गोइंग टू, भाई मस्तिष्क से आएंगे और मस्तिष्क को ही जाएंगे, एंड गोइंग टू द ब्रेन, मस्तिष्क को जाने और आने वाले जो इम्पल्स हैं उनको पैसेज प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का एडिशनल वर्क होता है। तो मैं एक बार इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके लिए। इट इज ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये नली के आकार की संरचना होती है, विच अटैच्ड विद मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द हिंड ब्रेन। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग होता है हिंड ब्रेन का पीछे वाला भाग, यहाँ पर ये अटैच होता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट न्यूरल केनाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूरल केनाल होती है। इट रिमेन हाउस्ड इन बिटवीन द वर्टिब्रा कॉलम्स फॉर सेफ्टी,
और ये सेफ्टी के लिए जो आपकी वर्टिब्रा कॉलम्स होते हैं, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी की जो कशेरुकाएं होती है आपकी गर्दन के अंदर, उन रीढ़ की हड्डी की जो कशेरुकाएं होती है वो इस तरह से पोली होती है, बीच में से हॉलो ऑर्गन है वो, और उस हॉलो ऑर्गन के बिटवीन यहाँ पर ये क्या रखा होता है, स्पाइनल कॉर्ड रखा होता है, ठीक है ना। ए नैरो सेंट्रल ट्यूब इज फाउंड, एक पतली केंद्रीय नली पाई जाती है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाले भाग में, विच रिमेन्स सराउंडेड बाय 2 लेयर्स थिक वॉल्स, जो चारों तरफ से घिरी रहती है दो दोहरी झिल्ली से, जिसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मोटी मोटी भित्ती वाली दोहरी झिल्ली से चारों ओर से घिरी रहती है ये नली जो होती है, नाल जो होती है। द इनर लेयर इज कॉल्ड ग्रे मैटर, जो अंदर वाली परत होती है उसको क्या बोलोगे, ग्रे मैटर, और जो बाहर वाली परत होती है उसको क्या बोलोगे, व्हाइट मैटर बोलेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड का जो मेनली वर्क्स होता है, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो तो क्या होता है, कंडक्ट एंड रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी एक्शन, जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है। और एडिशनली ये क्या काम करती है, एडिशनली इसका काम जो होता है, इट प्रोवाइड ए पैसेज फॉर द इम्पल्स, ये इम्पल्स के लिए एक रास्ता प्रदान करती है जो मस्तिष्क को जाते हैं और वहाँ से वापस लौटकर आते हैं। इनवॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इनवॉलंटरी एक्शंस को आप समझ सकते हो कि जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म वस्तु को छूता है तो आपका हाथ तुरंत उस स्थान से पीछे हट जाता है, आप भले चाहो या ना चाहो। तो इस तरह की जो एक्शन होती हैं वो इनवॉलंटरी एक्शन होती है। जैसे कांटे पर आपका पैर रखा तो तुरंत आपका पैर उस कांटे से ऊपर उठ जाएगा, वो इनवॉलंटरी एक्शन है, वो प्रतिवर्ती क्रिया है, और उनको कंट्रोल करने का काम इसी का होता है, स्पाइनल कॉर्ड का। अगर स्पाइनल कॉर्ड का ये इनवॉलंटरी एक्शन पर कंट्रोल्स नहीं हो और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपने हाथ से जब किसी हॉट थिंग्स को यानी कि गर्म वस्तु को टच करते हो तो ये वाली जो इम्पल्स है वो आपके ब्रेन के पास नहीं पहुंचेंगे और आपका हाथ डैमेज हो सकता है। यानी कि आपकी बॉडी को बहुत बड़े एक डेंजर से रेस्क्यू करने का काम किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। किसी भी प्रकार का कोई चेंज, जैसे आप चुपचाप से खड़े हो और पीछे से किसी ने अचानक से पेन चुभो दी तो आपका पूरा बॉडी एकदम एक्शन में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, उसके लिए आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है। कांटे से बचाता है, किसी भी नुकीली चीज़ कोई भी आपकी बॉडी को टच करती है, कोई भी हॉट आपको टच करता है, ठंड होती है, सर्दी गर्मी, ये सारी चीज़ें जो आपको महसूस कराने का काम होती हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाती हैं। और ये सारी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी बॉडी में करता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट आपको इस वीडियो में मैंने नोट किए हैं और एक्सप्लेन किए हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को डिफाइन करना होगा। और अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद लेवल डायग्राम, तो आपको ओनली ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है और उसका डायग्राम बनाना है और उसके स्ट्रक्चर को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इस चीज़ से आप उसका ख्याल रखेंगे। ये जो क्वेश्चन होता है ये 5 मार्क्स का होता है। ये जो क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो ये 5 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, जिसमें से 2 मार्क्स आपके डायग्राम के होते हैं, 3 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्शन के होते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप लोग अपना डायग्राम भी ठीक से ड्रॉ करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।